So this was the homework for yesterday. Yesterday we did projectile motion, and projectile motion is a part of 2D motion. And these are like 5 homework questions I've given to you. They are really good questions, not that easy and not also very tough actually. I'm starting from simply the first question, which is question number 8. A particle is projected horizontally and the velocity vector is given like this. It's horizontal range. Okay. So I can say like it's xz plane. Horizontal plane is xz plane. So basically this is some sort of a plane. Let's say this is x and this is z. So it is projected from this plane actually. So it is moving in x and y direction, where this is the y direction. So the projectile is getting formed in x and y direction actually. That's why you have x component of the velocity, which is given as ai cap. You have the y component of velocity, which is given as b minus ct j cap. So you can see, अगर मेरा x component, मेरा जो velocity का equation होता है vx, वो होता है ux plus ax into t, और vy जो होता है वो होता है uy plus ay into t. It is very clearly visible by comparing these equations that in x direction there is no acceleration, क्योंकि यहाँ पे time का कुछ है ही नहीं, and ux is simply a. Similarly, in y direction, we will get the initial velocity uy as b. The value of ay will be minus c, which is acting like a retardation. जैसे हमारा g होता था वैसे यहाँ c आ गया. तो basically what I can conclude is, इधर की साइड मेरे को velocity a दिया है, इधर की साइड मेरे को velocity b दिया है, और b को कम करने के लिए नीचे जो लग रहा है is this time it is c, not g. Now it's horizontal range. So guys, horizontal range is time of flight into horizontal velocity. ये कल मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था. रेंज होता है the time of flight into horizontal component of the velocity. We can clearly see the horizontal component of velocity is a, right? So a is the horizontal component of the velocity. This is a, and time of flight can be easily taken out. If I have thrown it by b, c is acting downwards, time of flight will be like 2b by c, following the thing 2u by g, where u is the vertical component, which is given as b. So time of flight will be like 2b by c multiplied by horizontal velocity component. So answer comes out to be 2ab by c. This is the final answer. So answer comes out to be 2ab by c. Aryan, is it clear to you? Sir, would you scroll down? Yeah. Yes, sir, समझ गया. ठीक है, समझ गया. Yes. रोहन, तुम्हें तो क्लियर था ये वाला क्वेश्चन तो? यस सर. है ना? ओके, नाउ आई एम टेकिंग. हाँ बोलो सर, पर मतलब वो रेंज के फॉर्मूला से किया तो? तो रेंज के फॉर्मूले से किया तो उस तरह से डालो चीजें वहां पे. u का वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, बिकॉज u इज द नेट वेलोसिटी. तो यहाँ पे यू हैव टू कंपोनेंट्स एक्चुअली, वन इज ए वन इज बी. यस सर. तो वहां पे डालो u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी. जी की जगह c डालो, u की जगह डालो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. टेन थीटा निकल के आएगा तुम्हारा b बाय ए, तो साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, वो डालो.
इसीलिए तो तुम्हें वो सिखाया जाता है डेरिवेशन, ताकि तुम खुद से सोच सको अगर सिचुएशन थोड़ी चेंज कर दी जाए तो। वॉट एवर वी आर स्टडिंग इज नॉट फॉर्मूला बेस्ड ना, अब तुम डालोगे वैल्यूज तो आ जाएगा। साइन थीटा निकालना पड़ेगा क्योंकि टेन थीटा इज बी बाय ए, वॉट एवर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कमिंग हियर is like theta, which is tan theta is b by a, तो sin theta निकालो, sin theta will be like b upon under root a square plus b square, cos theta निकालो, put करो, you will get the same answer, Yes, sir. right? Now there's the next question, which is question number 9, which is a very good question. They are talking about a grasshopper and he jumps to a maximum distance of 1.6 meter. So suppose grasshopper is here and he jumps to a maximum distance of 1.6 meter from where he is. That simply means grasshopper has a capability to jump with a speed u actually, but that u is aligned at an angle of 45 degree in order to get the maximum range. So in a single jump he moves by 1.6 meter and that is the maximum range. That's why I am using the property we have studied yesterday, that in order to jump to a maximum distance the angle should be like 45 degrees. In this manner he jumps to the maximum distance, and after that he spends negligible time on the ground and jumps again. So he is asking कि 10 सेकंड में वो कितना दूरी तक चला जाएगा. तो बेसिकली इट डिपेंड्स कि 10 सेकंड में वो कितने जंप कर पाता है. अगर 2 जंप कर लिए तो इट विल बी लाइक 1.6 into 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जंप में टाइम कितना लगा ये निकालना है. सो बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट. I am interested in getting the time of flight, and what is given to me? Range is given to me, angle of elevation or angle of projection is given to me. With this I want to find out time of flight. And now range is what? U square sine 2 theta upon g, that is 1.6. Theta is given as 45 degree. So from here I'll get the value of u actually. I'll put theta here, I get sine 90, sine 90 is 1, g is 10, so u square is 16. With this u comes out to be 4 meter per second. That is the value of u. Now finding the time of flight, it's really simple. It is 2u sine theta by g. So time of flight, it comes out to be 2u यानी कि 4 sine 45 upon g. That is your time of flight. Great. So in one time of flight he jumps to 1.6 meter. Now in 10 seconds how many time of flights are there? How many flights he can take? Number of flights in 10 seconds. This is your time of flight. Number of flights he can take is 10 by t, and distance moved will be 1.6 times number of flights, and this is like 10 upon t. t का वैल्यू आ रहा है 8 sin 45 upon g. So distance moved, एक फ्लाइट में 1.6 चलता है तो इतने में कितना चलेगा? This is 10g upon 8 into sin 45. This will be your final answer. Now if you are taking g as 10, it will be like 20 by 1 by root 2, 20 root 2 meters. That will be the answer. तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि ये इंसेक्ट ने एक जंप में 1.6 कवर किया, वो मैक्सिमम रेंज है, इसका मतलब 45 पे प्रोजेक्ट हुआ. वहां से मैंने u निकाला, u निकाल के एक जंप में लगने वाला टाइम निकाला. एक जंप में लगने वाला टाइम आपका ये कुछ आया. अब 10 सेकंड में वो कितने जंप करेगा वो निकाला. नंबर ऑफ जंप्स या नंबर ऑफ फ्लाइट्स या नंबर ऑफ जंप्स बोल दो.
नंबर ऑफ जंप्स इन 10 सेकेंड, नंबर ऑफ जंप निकाले और उस नंबर ऑफ जंप को मल्टीप्लाई किया 1.6 से, क्योंकि एक जंप में वो कितना कवर कर रहा है, 1.6. सो दीज क्वेश्चंस आर द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, बट दे आर नॉट लाइक डायरेक्ट कि फॉर्मूला दिया और तुम वैल्यू निकाल दोगे. दे आर लाइक you need to think about them. You got my point? Rohan and Arya, you can have a look at the solution and let me know your views about it. Is my voice clear? Yes, sir. Okay. सर हाँ रोहन बताओ. सर मेरा u का वैल्यू 8 आ रहा था. अच्छा, सर मैंने कुछ तो अलग किया था. नहीं तूने बता. क्या किया होगा ना, तूने 2 sin थीटा cos थीटा लिखा होगा और तूने sin 45 cos 45 को 2 लिख के काटना भूल गया होगा. एक मिनट रुक जा, तूने मेरे को भेजा है ना सोल्यूशन? यस सर. एक मिनट रुक जा, मैं देखता हूँ. बेटा तूने पता है इसमें क्या गड़बड़ करी है? यस सर. यू का तेरा रेंज का वैल्यू बेटा 40√2 आ रहा है यार, यू का वैल्यू 8 आ रहा है. एक मिनट तूने बेटा फॉर्मूला गलत डाल दिया. देख तूने एच मैक्स का फॉर्मूला यूज कर लिया उसमें यार. यस सर. एच मैक्स तूने हाइट मैक्सिमम ले लिया. रेंज मैक्स का फॉर्मूला तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी है ना. तूने फॉर्मूला यूज किया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. अच्छा अच्छा. समझ गया ना? यस ये सर. जो यस सर. फॉर्मूला यूज किया ना, यहाँ तूने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज कर लिया यस सर, समझ गया. है ना. ये गड़बड़ हो गई. और उसके बाद तूने ये नहीं सोचा, एक्चुअली तूने क्वेश्चन को ढंग से समझा नहीं था उसमें कि हो क्या रहा है. तो देख हो क्या रहा है कि एक ग्रास हॉपर है, वो मैक्सिमम 1.6 कूदता है, तो 10 सेकंड में कितना आगे जाएगा. तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा 10 सेकंड में वो कितनी बार जंप करेगा. तो उसके लिए पहले ये निकालो कि एक जंप का टाइम फ्लाइट टाइम क्या होगा, तब 10 सेकंड की नंबर ऑफ जंप्स आएगी. यस सर. है ना बेटा? क्लियर है ना आपको? क्लियर सर, अभी क्लियर. ओके. आप एक बार स्क्रॉल डाउन करके दिखा. हाँ स्क्रॉल डाउन कर दो. सर थोड़ा सा. थोड़ा और कर दूं? Yes, sir. हाँ. Yes, sir, समझ गया. ठीक है. Coming to the next question, which is question number 10, which is like a 2D motion question. क्या पूछ रहा है वो? सर एक्स कोऑर्डिनेट. हाँ बोलो. सर बट प्रीवियस क्वेश्चन का मेरा आंसर उसमें ही आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है. तो फ्रैक्शन में ही आएगा ना. 20√2 इज अ फ्रैक्शन. 2 को आप 1.4 लिख लो. ओके. हाँ तो फ्रैक्शन में आएगा अगर √2 का वैल्यू डाल दोगे 1.4 तो. तुम्हें लॉज मेथड समझ में आ गया ना? यस सर. ठीक है. द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, ये पूछ रहा है. एक्स कोऑर्डिनेट दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. इट कुड बी कंपेयर्ड टू sy बराबर uy t प्लस हाफ ay, सॉरी, it could be compared to sx बराबर ux t प्लस हाफ ax t square, and y is given as 10t minus t square. It could be compared to sy बराबर uy t plus half ay t square. By comparing this, you can get ux as 10, ax as 0. This is quite apparent. Ux as 10 and ax as 0. By comparing this, you get ui as 10 and ay as minus 2. That is what is happening over here. Even if you don't want to compare it,
Okay, not a problem. Maximum height. So they are simply asking y ka maximum value. Now y is dependent on time. You have to apply the concept of maxima and minima. In order to find out the maximum value of y, what should we do, Aryan? Can you tell me? If we want to apply maxima and minima. Do you remember the conditions for maxima and minima? आर्यन मैं तुमसे पूछ रहा हूं. मैक्सिमा एंड मिनिमा की क्या कंडीशंस है? b हाँ. by 2 है. What? b by 2 है. That is the x coordinate where we get the kink actually. But in order to get the maximum minima, we do the dy by dt first and make it equal to 0. Or you can directly see it's a graph of the parabola opening downwards. क्योंकि y t स्क्वायर में है वो, y वर्सेस t ग्राफ, y वर्सेस x होता तो वैसे ही होता. But you have to do dy by dt equal to 0. तो dy by dt करूंगा तो it will come out to be 10 minus 2t equal to 0. This will give me t equal to 5. So I will get the maximum value of y at 5 seconds. I will get the maximum value of y at 5 seconds. तो t का वैल्यू हम 5 सेकंड डाल देंगे तो y का हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा. बात समझ रहे हो? अच्छा, ये कैसे प्रूव हुआ? मैंने तुम्हें सिखाया था d2y by dt स्क्वायर करके देख लो. d2y by dt स्क्वायर कर रहा हूं तो dy by dt comes out to be 10 minus 2t. It is coming out to be minus 2, which is negative. And since d2y by dt square is always is negative, that means जो भी रूट आ रहा है वहां पे हमको मैक्सिमम मिलेगा. तो we will get the maximum value at t बराबर 5. Put t बराबर 5 in this equation. You will get the value as 25 meters. That will be answer. तो थोड़ा रिवाइज करो यार, जो पढ़ाते हैं तुमको. कंफर्ट जोन में रहते हो तुम लोग, ठीक है? कंफर्ट जोन में रहने से काम नहीं बनेगा. ये प्रॉब्लम है. यहाँ तो देखते ही तुम लोग ग्राफ बना देते इसका. मैंने पैराबोला का ग्राफ बनाना सिखाया है. y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो ये तो 10x माइनस एक्स स्क्वायर जैसा ही तो है. अगर t की जगह x रख दूंगा तो ऐसा ही तो है. दो जगह काटेगा, 0 पे काटेगा, 10 पे काटेगा, और 5 पे ये ऐसा आएगा. अब x की जगह t डाल दूंगा तो यहाँ t हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा. ऐसा ही तो बनने वाला है. इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? समझ रहे हो बात? रोहन, तुमसे हो गया था ये वाला क्वेश्चन? सर मैंने कुछ तो अलग ही किया है इसमें। क्या किया है तुमने? सर मैंने क्या किया, मेरे को लगा वो थीटा 45 होगा, हाँ हाँ हाँ. इसलिए वो मैक्सिमम हाइट है बेटा, मैक्सिमम रेंज थोड़ना है. अच्छा। थीटा 45 तो मैक्सिमम रेंज के लिए होती है. अब हाइट किससे गवर्न होती है? y से. अगर यस सर। मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो y का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, और y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे. यस तो सर। मेरे को ये निकालना पड़ेगा t के कौन से वैल्यू के लिए y मैक्सिमम आएगा. यस सर। उसके लिए मैं मैक्सिमा एंड मिनिमा अप्लाई करूंगा. तभी तो सिखाया था तुमको मैक्सिमा मिनिमा. यस सर। इट इज अ टूल. जब आपको ये पता हो कि एक वैल्यू दूसरे पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो कौन से वैल्यू के लिए आपको मैक्सिमम मिलेगा. इट इज अ टूल एक्चुअली. अभी देख लो तुम लोग ये क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देख लो एक बार. और कोई डाउट है तो मुझे बताओ.
आर यू क्लियर गाइस? बच्चों यस सर। समझ गए क्या? यस सर। अरे यार, अगर तुम्हें प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगाना है ना, तो देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दो। ये देखो, ये यू वाई का वैल्यू तुम्हारे पास है, यू एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास है। मैक्सिमम हाइट क्या होती है? यू साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। जी का वैल्यू यहाँ पे 2 लेंगे, कंपेयर करके देखा मैंने। हियर g इज नॉट 10, हियर g इज 2। बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन उससे भी आंसर आ जाएगा, अगर इसको तुम कंपेयर करोगे तो। नहीं तो मैक्सिमम मिनिमा से भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुमसे हो गया रोहन? यस सर, ये हो गया। ओके आर्यन? 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 यस सर। हाँ बोलो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 11th वाला कैसे अटेम्प्ट किया तुमने, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा तुमने इसको किया है एक्चुअली, या ज्यादा सीरियसली तुमने चीजों को अटेम्प्ट किया है। कैन यू सेंड मी योर अटेम्प्ट एक्चुअली, हाउ यू अटेम्प्टेड द क्वेश्चन? कैन यू सेंड मी दैट वेयर यू हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन? सर आई डिड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो यार 5 ही तो क्वेश्चन देता हूं मैं होमवर्क में यार, वो भी तुम नहीं कर पाते हो यार। यू कांट फाइंड द टाइम इन द होल डे to attempt only like 5 questions in 24 hours, right? So it's really alarming. There were like only 5 questions, though they were good questions, but you didn't find the time to attempt them. रोहन तुमने कैसे किया इसको? और सर मैक्सिमम हाइट पे हाँ, यू कॉस थीटा को u/2 के इक्वल किया। वेरी गुड। ये यहाँ u पे प्रोजेक्ट किया, ये एंगल थीटा है, तो बोल रहा है द स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट which is u cos theta is equal to half its initial speed of projection. Now initial speed of projection is u, उसका half ले लेंगे, so this gives me cos theta equal to 1/2 and this gives me theta equal to 60 degree. ऐसे ही किया रोहन? यस सर। अब रेंज कैसे निकाली? रेंज के लिए क्या फॉर्मूला लिखा? सर रेंज के लिए u² साइन 2 थीटा yg किया, फिर साइन 120 को मैंने साइन 90 प्लस 30 लिखा, फिर कॉस वेरी गुड, 30 आ गया। बहुत बढ़िया। ऐसे भी कर सकते हो इसको तुम, 2 sin थीटा cos थीटा ऐसे भी लिख सकते थे, और इंडिविजुअली 60-60 पुट कर देते तो भी तुम्हारा आंसर आ जाता। यस सर। बट तुमने साइन 120 को लिखा है, दैट इज ऑल्सो ओके, नो प्रॉब्लम। ग्रेट, it is a very simple question. Simply you have to put the values. Coming to the last question now. हाँ भाई आर्यन, तुमने पढ़ा ये क्वेश्चन लास्ट वाला? Did you read this question, last question? यस सर। Were you able to, what interpretation you can make out of it? What was your interpretation? Sir, I think it's asking that the speed the projection had at its maximum height, if with that speed, if the object is thrown again, what will be uh,
The range. range. If R is the range of the projectile on horizontal plane, H is the maximum height. So R is like U square sine 2 theta by G. And H is like U square sine square theta upon 2G. R is the range of the projectile and H is the maximum height. Then maximum horizontal range with the same speed of projection. सर Now he's पहले तो ये जो डेटा हमें दिया है, इस डेटा से तुम लोग U निकालोगे. You will find out U. ठीक है? Because if R is the range of the projectile and H is its maximum height. ठीक है? That means हमने थीटा पे उसको फेंका और U से फेंका, तब हमें R और H मिला. तो using this equation, first of all, find out the value of U. पहले तो U निकालने के बाद तुम लोग फिर दूसरा इक्वेशन बनाओगे और उस वाले इक्वेशन में R का जो वैल्यू आएगा, R मैक्सिमम, उसको पुट करोगे U स्क्वायर साइन 2 into 45 अपॉन G. उसमें तुम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 लोगे. उसमें तुम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना लोगे? 45. तो बेसिकली इस वाले में, क्योंकि अब तुम्हें मैक्सिमम रेंज निकालनी, अब तुम्हें U निकालना है, U स्क्वायर निकालना है ऊपर से. अब U स्क्वायर कैसे निकालोगे? दैट इज द चैलेंज. ऊपर वाली इक्वेशन में से अगर मेरे को U स्क्वायर निकालना है तो मुझे थीटा को गायब करना है. सिंपल सी बात ये समझ में आती है मेरे को. तो वो काम मुझे करना है कि कैसे भी मैं U स्क्वायर निकालूं. R का वैल्यू मेरे पास क्या है? U स्क्वायर बाय G इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. H का वैल्यू है U स्क्वायर बाय 2G इंटू साइन थीटा साइन थीटा. साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे ही लिख रहा हूं. ओके, ध्यान से देखना मैंने पहली और दूसरी इक्वेशन को कैसे सॉल्व. मैं दोनों को डिवाइड मार देता हूं. दोनों को डिवाइड मारा ना, तो U स्क्वायर बाय G से U स्क्वायर बाय G उड़ गया और ये 2 ऊपर चला गया और ये बन गया 4 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा साइन थीटा. साइन थीटा से मैं साइन थीटा काट दिया, ये बन गया R बाय H इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. नीचे बना, उसको मैं टेन थीटा लिख दूंगा. मैं जानता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू 4H बाय R. दैट इज ऑल्सो नोन टू मी, राइट? सो दैट विल नॉट हेल्प. मेरे को तो U निकालना था, तो U निकालने के लिए मेरे को कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिससे U कैंसिल ना हो और बाकी सारी चीजें हमारी कैंसिल टाइप हो जाए. तो ये चीज से तो मेरे को कुछ हेल्प नहीं हो रही है. U कैसे निकालें इन दोनों से, ये तुम लोग सजेस्ट करो मेरे को. U कैसे निकाला जाए? मेरे को थीटा गायब करना है, U निकालना है. कोई सजेशन है तुम लोगों का? U कितना आएगा? एनीथिंग यू कैन सजेस्ट. ऐसा करते हैं U स्क्वायर निकाल के टेन थीटा निकाल लेते हैं, या थीटा का वैल्यू निकाल के कहीं ना कहीं पुट करो ताकि U निकल के आए तुम्हारा. फिर उस U को यहां उठा के पुट करो, या फिर ऐसा करो U स्क्वायर बाय G का वैल्यू निकाल लो पूरा का पूरा. अगर मैं U स्क्वायर बाय G का वैल्यू निकालूं पहले इक्वेशन से, तो वो क्या निकल के आ रहा है? वो आ रहा है R अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा. दूसरे इक्वेशन से U स्क्वायर बाय G का वैल्यू क्या आ रहा है? 2H अपॉन साइन थीटा साइन थीटा. दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? R इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2H अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा. साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल कर दिया, घूम फिर के मेरे पास वही निकल के आता है, टेन थीटा बराबर 4H बाय R. बात समझ में आती है? अब मुझे क्या चाहिए?
द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज विद द सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। मेरे को कैसे ना कैसे यू निकालना है। यू कैसे निकाल सकता हूं मैं? अगर टेन थीटा 4h/r है, देखो टेन थीटा कितना निकल के आ रहा है 4h/r। इसी का मैं यूज करके क्या यू निकाल सकता हूं क्या? अगर टेन थीटा 4h/r आ रहा है तो साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा आएगा 4h अपॉन अंडर रूट ऑफ 4h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। अब सेकंड नंबर की इक्वेशन जो है उसमें मैं इसको प्लेस कर देता हूं। देखो ध्यान से, h बराबर यू स्क्वायर बाय 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा करूंगा तो ऊपर बन जाएगा 16h स्क्वायर अपॉन 4h का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यू स्क्वायर बाय जी का वैल्यू, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से h से h कट गया, ये चीज उधर जाएगी, तो ये बनेगा 4h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू 2g/16। 2g/16h, ये अपना यू स्क्वायर आ गया। ये यू स्क्वायर का वैल्यू है। अब यही यू स्क्वायर का वैल्यू बेटा जो आपने निकाला, इस यू स्क्वायर के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो। मैक्सिमम रेंज, रेंज मैक्सिमम क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी। तो यू स्क्वायर का वैल्यू यहां पर डाल दो, तो आर मैक्सिमम क्या आएगा? ये तो 1 हो ही गया। ऊपर वाली वैल्यू को जी से डिवाइड मार दूंगा, 1/g टाइम्स 2g अपॉन 16h इंटू 16h का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये मेरा आंसर कुछ बनेगा, जी से जी कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/8h 16h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो यह आएगा 2h प्लस r स्क्वायर अपॉन 8h। ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है वहां पे? आंसर कम्स आउट टू बी 2h plus r square upon 8h. This is the answer. तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू वैसे कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, तुम लोग इसको सोच सकते हो बैठ के। एक बार रफ कॉपी और पेन लो, खुद से ट्राई करो इसको। सर हाँ बोलो। सर एक और बार समझा सकते हैं? हाँ मैं समझा, मैंने सिंपल कुछ, मैं तुम समझने की कोशिश करो ना, तुम्हारे सामने है ये क्वेश्चन। ये देखो मैंने क्या किया, टेन थीटा निकाला 4h/r, वहां से मैंने साइन थीटा निकाला, साइन थीटा को यहां पुट किया, उससे मैंने निकाली यू स्क्वायर की वैल्यू, और फिर उस यू स्क्वायर की वैल्यू को मैंने मैक्सिमम रेंज में पुट किया। पहले तुम सवाल पढ़ो, ठीक है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। उसमें बोला है कि आपने यू स्पीड से थीटा एंगल पे लॉन्च किया तो रेंज आर मिली, हाइट एच मिली। अब यू ही स्पीड से जब आप मैक्सिमम कितनी दूरी फेंक सकते हो, तो मैक्सिमम दूरी जब फेंकनी है तो एंगल 45 लोगे, तो ये दूरी निकल के आएगी। यू स्पीड से मैक्सिमम दूरी फेंकना है तो ऊपर वाली दोनों इक्वेशन की मदद से आप पहले तो यू स्क्वायर निकालो, उसको यहां पुट करो, तब आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सर मतलब दोनों इसको इक्वेट करना था। दोनों इसको इक्वेट नहीं करना था, मैंने तो यू स्क्वायर निकालना था। पहले मैंने टेन थीटा निकाला, टेन थीटा से यू स्क्वायर निकाला, ये दो इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे यू स्क्वायर का वैल्यू निकालना है।
इन टर्म्स ऑफ आर एंड एच। अब इसमें दो वेरिएबल है, एक तो यू है और एक थीटा है। तो पहले मैंने थीटा को निकाल लिया, फिर उसको गायब करके टेन थीटा को 4h/r लिखा, वहां से साइन थीटा निकाला, साइन थीटा को यहां डाला और यू स्क्वायर निकाला। फिर इस यू स्क्वायर को मैंने इस वाले इक्वेशन में पुट किया, ये वाले इक्वेशन में। समझ गए? यस सर। ये किया है। अब रफ कॉपी निकालो, खुद से एक बार करो। इनिशियल वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी ना? अरे तो भैया वही तो निकाली है ऊपर से, यू यू स्क्वायर का वैल्यू तो निकाला है, लेकिन आंसर तो आर और एच की टर्म में देना है ना। ओ अच्छा, हाँ। हम्म, तो वही तो ऊपर से निकालना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। ये है बात। रफ कॉपी निकाल, सॉल्व कर इसको। रोहन तेरे को समझ में आया? यस सर। रफ कॉपी निकालो, सॉल्व करो इसको, भेजो मेरे को, सॉल्व करके भेजो मेरे को। तुम ऐसे तो करने नहीं वाले हो। भेजो मेरे को, व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप कर रहे हो क्या आर्यन? रोहन व्हाट्सएप कर रहे हो? यस सर। ओके। सर सर वहाँ पे आर मैक्स में 1 क्यों नहीं ले लिया? वन ले लेते, साइन 45 तो साइन 90 तो 1 ही हो जाएगा। हाँ। हाँ तो ठीक है, वन वन ही लिया है अल्टीमेटली। वो तो सिर्फ लिखने का तरीका है, साइन 2 × 45 लिया तो 1 ही है फाइनली।
लेकिन आर मैक्स थोड़ा ना 1 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्टी तो 1 होगा, ये वाला। Yes, sir. तो ठीक है, वो तो एक्सप्रेस किया है ताकि तुम्हें पता लगे कि आर मैक्स 45 पे आता है। अल्टीमेटली इट विल बी 1। इट इज सिंपली यू स्क्वायर निकालने के बाद उसको जी से ही तो डिवाइड किया है मैंने, क्योंकि ये चीज तो 1 ही हो गई। Yes, sir. हाँ हाँ. भेजो जरा। अरे इतना टाइम कैसे लग रहा है भाई? भेजो भाई। रोहन, रोहन, यस सर। क्या कर रहे हो भाई? सर थोड़ा बहुत हो गया है लेकिन उसके आगे नहीं आ रहा। अभी ये देख सॉल्यूशन दिखाया। टेन थीटा आ गया, 4h/r आ गया। यस सर, इधर तक आ गया था सर। साइन थीटा आ गया। यस सर। अभी ये वाले इक्वेशन में डाल उठा के साइन थीटा वाला वैल्यू, और यू स्क्वायर का वैल्यू निकाल। ये वाले इक्वेशन में डाल, यस सर। यू स्क्वायर का वैल्यू निकाल।
Okay. रोहन भेज, यू स्क्वायर निकाल लिया? यस रोहन यू स्क्वायर निकाल लिया? यस सर ऐसा कुछ आ रहा है, यू स्क्वायर ऐसा कुछ आ रहा है? यस सर ओके। आर्यन तूने निकाल लिया? आर्यन Yes, sir. हैव यू फाउंड आउट? Sir, almost. ठीक है, भेजो, जल्दी भेजो, टाइम मत वेस्ट करो। रोहन तेरा कहां तक हो गया? सर अभी यूज कर से आगे कर रहा हूँ। कर, जल्दी करो, भेजो। रोहन भेजो यार, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को, तुम लोग मेरे को पका रहे हो। इतना टाइम नहीं लगता इसमें, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? तुम्हारे सामने सॉल्यूशन पड़ा है यार। आर्यन वेयर आर यू राइट नाउ? Sir, found you. यू नहीं फाउंड करना, यू स्क्वायर फाउंड करना है। अरे U square, हाँ. रोहन वेयर आर यू राइट नाउ? सर उसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ। क्या सॉल्व कर रहा है? उसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं है, यू स्क्वायर निकालने के बाद तो जी से डिवाइड करना है। अच्छा इसी में तो डालना है यू स्क्वायर का वैल्यू।
सर u का वैल्यू, यू स्क्वायर का वैल्यू। सॉरी u स्क्वायर का वैल्यू हम्म 16 ये सॉरी आ रहा है, ये तुम्हारे सामने है, मैच कर लो। सर अच्छा आपने इवैल्यूएट किया। ओके हम्म। मतलब मैंने उसको वो कर लिया था, मतलब 4h स्क्वायर प्लस RX स्क्वायर वाला है ना। हाँ मैं समझ गया, उसको तूने 16 लिख लिया है ना। हाँ यार भेजो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, 20 मिनट खराब कर दिए तुम लोगों ने छोटे से प्रॉब्लम में। सॉल्यूशन तुम्हारे सामने पड़ा है यार। रोहन कहाँ पे यस हो सर। भाई, क्या कर रहे हो यार, क्या निकाल रहे हो। सर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। आंसर आया तेरा, आगे भेजो ना। आगे क्या आंसर। अरे यार तुम लोग आधा आधा घंटा ऐसे छोटे छोटे सवालों में लगा देते हो, क्या तुम लोग यार, कोई कैलकुलेशन स्किल्स नहीं है तुम्हारे पास यार। आर्यन तुमने कर लिया। सर सर पर कुछ तो गलती कर दी मैंने। तो आंसर मैच नहीं हो रहा होगा। हाँ भैया तू गलती चेक करना, तेरा यू स्क्वायर क्या आ रहा है यार। सर मेरा u स्क्वायर आ रहा है हम्म 16h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू 2G अपॉन 16h। तो मेरा भी यही आ रहा है, उसके बाद सीधा बस उसको जी से ही डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। ओके सर दैट इज ऑल यू हैव टू डू। 16h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू 2G अपॉन 16h को G से डिवाइड करना। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ डालोगे, ये जो है ये इवेंट में ये तो पूरा वन ही हो रहा है, यस सर। सीधा जी से ही तो डिवाइड करना है यार, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। रोहन तुम्हारा क्या आ रहा है यू स्क्वायर। सर 16h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू 2G by 16H।
अब इसको जी से डिवाइड कर दो ना यार, इतना क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को। जी से डिवाइड किया, जी से जी कट गया, यहाँ पे 2 से 16 कट गया। अभी इसको अंदर लेके चले जाओ, बच्चों की तरह ये सारी चीजें भी बतानी पड़ेगी तुमको। ये यू स्क्वायर को उठा के यहां डालोगे ना, तो ये साइन 245 तो 1 हो जाएगा। जी से डिवाइड मारना है इसको। सर बोलो। सर आ गए। हाँ तो आना ही चाहिए यार। रोहन तेरा आया क्या? यस सर, आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैं प्रोजेक्टाइल, अगली बार जो कराऊंगा प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन कराऊंगा, अभी प्रोजेक्टाइल का एक वेरिएशन और है। मान लो मैंने 80 मीटर ऊंचा टावर लिया, जी का वैल्यू मेरा 10 ही लूंगा मैं हमेशा, और यहां से इस बार मैंने बॉल को 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी देके फेंका। इस बार ये ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, हाइट टू ग्राउंड है। तो इसको जब मैंने ऐसे देके फेंका तो ये जाके यहां कहीं गिरा। इसमें दो कंपोनेंट आ गए वेलोसिटी, एक तो 5 तो एज इट इज रहेगा, एक ये भी आ गया। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, टाइम टेकन बाय द बॉल to reach the ground, to reach the ground. Second, horizontal range covered by the wall, horizontal range covered by the ball. Third, velocity of the ball while striking the ground, while striking the ground. And fourth, angle made by velocity vector, angle made by velocity vector with ground on reaching there. ये सिंपल 4 क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें आंसर करने हैं। स्टार्ट कर दो। ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है, एक्स और वाई को अलग अलग सॉल्व करें, अपने आंसर दें। रोहन, आर यू एबल टू फाइंड आउट द टाइम? डूइंग सर। ओके,
सर टाइम आ गया। ओके, भेजो मेरे को। मेरे रोहन तेरा आर्यन तेरा है क्या टाइम? हाँ सर। ओके, अभी रेंज निकालो दोनों लोग। सर निकल क्या हॉरिजॉन्टल रेंज निकल गई। रोहन टाइम क्या आ रहा है बेटा? सर रूट 40 आ रहा है। गलत आ रहा है। तेरा क्या आ रहा है आर्यन? सर 4 सेकेंड। 4 सेकंड आएगा। तूने टाइम में क्या किया रोहन? वाई सर डायरेक्शन पे डिपेंड, वाई डायरेक्शन में 80 मीटर गिरने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम होगा, 5 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रोहन, सर which equation you used in time? SY is equal to UYT plus half AYT square। तो कुछ गलती कर दी सॉल्यूशन में तूने। ui कितना लिया? UY 0 लिया। ठीक है। ay कितना लिया? 10 लिया। यस सर। sy कितना लिया? -80। यस सर। तो चेक कर, कुछ गड़बड़ किया है, चेक कर। मिल गया गड़बड़? अरे मिला क्या गड़बड़? यस सर, मिला मिला। ठीक है, ठीक है। तो टाइम आएगा 4 सेकेंड्स। टाइम को एक्स डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आर्यन, रेंज क्या आ रहा है? 20 रेंज हाँ, रेंज हॉरिजॉन्टल आया रेंज। 20 मीटर। फर्स्ट क्लास। क्योंकि सीधा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया तुमने 5 से। यस सर। ग्रेट, ठीक है। चलो, लास्ट के 2 पार्ट तुम लोग सॉल्व करो, बोलना मत। भेज। हाँ, सर थर्ड वाला हो गया। ठीक है, हो गया फोर्थ तो वाला रखो कैसे उसको। करे वो नहीं सर। जैसा भी है तुम इसको अटेम्प्ट करो और सेंड इट टू मी, व्हाट्सएप करो मेरे को जो भी हुआ है। डोंट से इट हियर। सर फोर्थ वाला कैसे? अरे मैं वही बोल रहा हूँ ना, नहीं हुआ तो बताऊंगा यार, रुको ना, सबको एक साथ ही तो बताऊंगा ना। भेजो मेरे को, व्हाट्सएप करो आर्यन। जो भी थर्ड वाला तुमने निकाला है व्हाट्सएप करो, थर्ड पार्ट। यस सर। रोहन, तुम्हारा थर्ड पार्ट आया? यस सर, आगे। वेरी गुड, भेजो जरा, फोर्थ निकालो। ग्रेट, 5 - 10t। लेकिन रोहन, इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है, बताऊं क्या?
यस सर। तुमने देखो 5 के आगे आई कैप नहीं लगाया, हाँ सॉरी 5 आई सर। कैप, हाँ बस छोटा सा गड़बड़ है ना। ठीक है, तो जब लैंड करेगा तो 40 हो जाएगा उसका स्पीड। सही है। अभी बात आती है एंगल की। सर हाँ बेटा, सर वहां पे मैंने कुछ तो थीटा निकाला। कहाँ पे निकाला तूने, भेजा है क्या मेरे को? यस सर, एकदम लास्ट लाइन में। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो तूने सही किया है वैसे तो। मतलब ऐसे होगा देख, ये जब बॉल लैंड किया तो बॉल का ये वाला कंपोनेंट 5 है और ये वाला कंपोनेंट 40 है। अभी जो नेट वेलोसिटी आएगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, और ये एंगल मैंने पूछा है थीटा। नाउ यू कैन मेक अ ट्राइंगल लाइक दिस इज 5, दिस इज 40, and this angle is theta. So tan theta will be 40 by 5. You did it right. No problem. So theta comes out to be tan inverse 8. करेक्ट निकाल लिया तूने? तुक्का मारा था क्या? नहीं थोड़ा तो सर, सोचा वो होगा। आपने कल 45 वाला समझाया था ना कि कैसे हाँ होगा। हाँ, बराबर बराबर, वैसे ही। रोहन, तेरे को थीटा समझ में आया? यस सर, समझा सर। ऐसे करके थीटा निकालना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अभी एक काम ये करो, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। 80 मीटर टावर है और यहां से मैं लॉन्च कर रहा हूं 50 मीटर पर सेकेंड पे एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। अभी मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट, वही सारी चारों चीजें निकालनी है। हॉरिजॉन्टल रेंज, फिलहाल तो ये दो निकाल के बता दो, ये दो वैल्यूज क्या है, सॉल्व करो। सर अब G10। टाइम ऑफ फ्लाइट। नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ। हाँ यार, वो तो यार अंडरस्टूड है ना, बार बार थोड़ा ना बोलूंगा यार। अंडरस्टूड है वो तो यार, जब नहीं बोलता तो 10 ही लेना है।
हाँ भाई रोहन, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया क्या? ऑलमोस्ट हो गया सर। ठीक है, आर्यन तुम्हारा भी होने को ही होगा। Yes, sir. ठीक है। Sir, निकल गया। Time of कितना आ रहा है? 5, sorry, 25. sir. रोहन, Sorry, 5 second, 5 second. रोहन, सर मेरा 4 आ रहा है। इक्वेशन कौन सा लगाया है? एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर एस वाई कितना डाला? -80 यू वाई 40 आर्यन, तुमने यू वाई कितना डाला? मैंने UI 30। ये देखो, तुमने कंपोनेंट गलत ले लिए क्या? 50 साइन 37 आएगा ना, तो 30 आएगा रोहन। 37 डिग्री का एंगल है बेटा। 37 डिग्री का एंगल है ना। Yes. तो रोहन तूने 40 कैसे डाला यू वाई? सॉरी सर, वो उल्टा ले लिया यू एक्स और यू आई को। तो बेटा इससे नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। तो आर्यन तेरा आंसर क्या आ रहा है? 5 सेकंड आ रहा है। Yes, sir. एक मिनट रुक जा। तेरा यू आई कंपोनेंट कितना आ रहा है? 30 आ रहा है ना। Yes, sir. 5 सेकंड तो आ ही नहीं UI. सकता बेटा, 5 सेकंड नहीं आ सकता आंसर। 5 सेकंड नहीं आ सकता। -80 इज इक्वल्स टू 30t -5t²। ये इक्वेशन बनाइए। सर पर पहले तो वो ऊपर जाएगा ना। हाँ तो ये तो एक ही बार में सब कुछ सॉल्व कर देगी। ऊपर जाके नीचे आना एक बार में सॉल्व होता है भैया। ऊपर जाएगा तब भी 3 सेकंड जाने में लगेंगे, 3 आने में लगे, 6 सेकंड तो यही हो गए। तो आंसर 5 कैसे आएगा? ये इक्वेशन एक बार में सब कुछ सॉल्व कर देती है। पहले ऊपर जाके नीचे आने में फाइनल लेती है इक्वेशन। यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट है, तो तुमने +30 डाल तो दिया यहाँ पे। 30 ऊपर की तरफ था, पढ़ा रखा है। तो भले ही बॉल ऊपर जाके नीचे आए, ये इक्वेशन एक बार में आंसर देती है। तभी तो यू को +30 डाला है। Yes, यू sir. +30 है तो जाएगा ही ऊपर। अब पूरा काटेंगे इसको, तो ये आ जाएगा -16 इज इक्वल्स टू 60 -t², या फिर t² -60 -16 इक्वल टू 0। तो यहां से टाइम की वैल्यू आएगी 8 सेकंड। 8 सेकंड आएगा टाइम। क्या हुआ, समझे? Yes, sir. सर हाँ सर थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब यू हाँ। एक्स और यू आई में। क्यों? यूएक्स क्या है? 50 cos 37 है। यस सर। अड़ा हुआ जो यहाँ वाला कंपोनेंट होता है वो 50 cos 37 होता है, और जो ये है वो है 50 sin 37। यस सर। इसमें क्या कंफ्यूजन हो गया था तेरे को? इसमें क्या कंफ्यूजन पैदा हो गया भाई? जो भी एंगल से अड़ा हुआ वैल्यू आता है वो तो कॉस में आता है, जो दूसरा आता है वो साइन में आता है। तो सर यू आई 40 आएगा। 40 क्यों आएगा भैया? साइन 37 का वैल्यू 3/5 होता है यार। कॉस 37 का वैल्यू 4/5 होता है। अच्छा अच्छा, सॉरी सर। सही है ना? यस सर, समझा। ज्यादा दिमाग पे लोड डाल लिया क्या तूने? हैं? क्यों रोहन?
तो sin 37 cos 37 भूल गया यार। नहीं सर, आज रिवाइज करूंगा सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लोगे? हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ कितनी आएगी? हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आएगी? आर्यन, रोहन, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आएगी बच्चों? सर कर रहा हूँ कैलकुलेट। बहुत फास्ट होना चाहिए भाई। आर्यन कितनी आ रही है? टाइम तो 8 सेकेंड आई गया। यस सर, यस सर। रेंज कितना आएगा जल्दी बताओ? थ्री 20 मीटर। एग्जैक्टली, सिंपली 40 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 40 उसको साइड में लेके जा रहा है, और कब तक लेके जा रहा है? जब तक वो ऊपर जाके नीचे नहीं गिर जाता। सो आर्यन, अभी तेरे एग्जाम खत्म हो गए, यू ऑल्सो नीड टू रिवाइज द प्रीवियस सिस्टम, यस सर, है ना? यस सर। बेटर मेक इट नाउ, and I will let you know the time for the integration class in a while. I have in mind, okay? सर वो मैक्सिमा मिनिमा भी इंटीग्रेशन में ही पढ़ाया था क्या? नहीं नहीं, वो डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था। तू पहले ये पता कर ले कि तेरे कौन कौन से लेक्चर मिसिंग है। जस्ट लेट मी नो दोज Yes, लेक्चर sir. नंबर्स, ठीक है Yes. ना? गिव मी हिंट कि मेरा लेक्चर नंबर इतना और इतना मिसिंग है, एक बार देख के, ठीक है? सो वी विल गो थ्रू दोज लेक्चर्स, ओके? Yes, sir. रोहन, डिड यू गेट द रेंज? यस सर। 320 आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ठीक है, fine fine. So tomorrow and day after tomorrow we have a leave, right, for the Deepavali celebrations. Though I will send you like 5 to 6 questions, and I am expecting you to do them on after the vacation get over. तो शाम को मेरी क्लास होगी, उसमें मैं डिस्कस करूंगा उसको. You can do on that day itself, ठीक है? Okay guys, today is Wednesday. We have a leave for Thursday and Friday. We'll meet on Saturday as well as on Sunday also. We'll have a class. ठीक है क्या बच्चों? यस सर। Okay, Aryan. Yes, sir. Fine. Take care, guys. Wish you a very happy and safe Deepavali. Keep yourself safe. That is most important. And have fun. Okay. Yes, sir. Okay. Take care. Bye. अभी बहुत सारे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्जर्व करने को मिले। हाँ, रॉकेट वॉकेट, लेकिन कोशिश करना मैक्स रेंज मिनिमम रहे. Yes, sir. Try to minimize the range as much as possible. Yes, sir. Otherwise, it may be like dangerous for you guys, right? Yes, sir. Okay, बच्चों. Take care. Enjoy. Have fun. But be Thank safe. Bye, sir. Bye. Bye. थैंक यू Take सर। care. Bye, beta.